Hi, this is Priya Kumar. So we are live here on the Sangeet Kala Mandir Facebook page. So I'll wait for a few of you to join in so we can get started. Um, I'll use my glasses. If there are comments, I will read the comments here. So it is 7 o'clock. Actually, one of my clocks shows 6:55, but my clock here watch shows 7 o'clock. So welcome everybody. My name is Priya Kumar. I am a motivational speaker, author and screenwriter, and I am very happy to be here live with you guys. I must congratulate the Sangeet Kala Mandir. You guys have completed 25 years. That is amazing. Hi Ronak, hi Manoj. And you know why this is also special for me? Because I have completed 25 years as a motivational speaker. So we share that in common, and it's very commendable that Sangeet Kala Mandir is organizing such amazing workshops on the platform for all diverse audiences, and I think it's an awesome initiative. So well done on that, and it's my pleasure to be associated with you guys. So hello everyone, Monica, Sneha, Rishi, Manoj, it's a pleasure to be addressing you guys. So before I get started, hi Charu, before I get started, I'd like to tell you a few things. One is there could be network issues. Yeah, you all know this lockdown has brought us into terrible network states. So then if the network goes on and off, please tell me in the comments that the network is breaking. So I might shift from my 4G to the Wi-Fi just in case it gets a little jumpy. The second is I'm doing this live from home, and we all know that at home there's a lot of distraction, and I have 2 dogs and they like to see already there is connect. See, already there is a network error, so now I've just switched to my 4G. So am I audible? Can you all see me clearly? So I know there was a little glitch. Can you all see me? Somebody say hello. Okay, so I am assuming all is good. So can you see me on the Facebook Live? Is it on? I know the network jumped from my side, so I am just hoping that we are connected. ठीक है, चलो. If something's wrong, just let me know. Okay, good, Rishi, thank you for that. So I was saying I have 2 dogs. One is Chicky and one is Muffin, and they both love to be in all my lives. So if they come and disturb, my apologies upfront for that. You can't do anything anymore. So this is it. So chaliye, let's get started. I am going to be with you guys for an hour till 7:55, 8 o'clock. And if you have any questions for me, you can post it here. I know these are tough times. Nobody had imagined a time like this. Some people say that this is the worst that I have seen. And let me tell you, if you think this time of COVID, this time of lockdown is the worst, then life only brings you tougher challenges in the future. So my dear friend, let me break this news to you that the worst is yet to come. And why? Because life's tests always grow higher. See, like remember you were in school and college, the tests always got higher. You went to a higher grade. So higher endurance. For those of you who are into sports, you also know that the gravity of the practice starts to increase. So the good part is, if you can survive this tough time, it will at least prepare you for the future. That anything less than this, you will be able to handle with your left hand. Anything bigger than this, you're prepared for. So I will be discussing a lot of points, and based on that or anything else, if you have any questions, I would be happy to address it. See,
I have heard a lot of good things about you guys. This whole platform is amazing. I was watching a few posts, from the earlier speakers and singers. You guys are amazing. And especially for artists, this time of lockdown is, I think, a blessing. I am a speaker and I'm also a writer, and I have used this time to write books. And in my building, there are a few singers and musicians. So itna acha lagta hai, at some point in the day when I hear somebody singing, I think wo khidki pe khade hoke they sing a song, and I pass the message up and down, whoever it is, please continue. I would like to listen more. So I think for us, it's a very good time and a very good opportunity. But the problem is that change always brings worry. We don't handle change very well. So for those of you who are right now on Facebook Live, I want to explain to you the anatomy of change and what it does to us. Okay, so if you're watching me right now, do this. Okay, take your hand and fold it like this. Okay, come on, do it. So if you take your hand and if you fold it like this, check, is your left thumb over your right thumb, or is your right thumb over your left thumb? Okay, now you notice that. So if your hand is like this, which is your right thumb is over your left thumb, now change it. Okay, now the minute you change it, observe how you feel. It's uncomfortable, right? Imagine now, changing a thumb is uncomfortable. So how making big changes in life, how uncomfortable that would be. In fact, people, sometimes don't want to change. See, let me tell you, ye jo waqt aaya hai na, it is hinting toward massive change. And that is the topic of my discussion. Turn the tables. You will see that I have a whiteboard. There are some points which I'd like to write, so I'll write it here on the whiteboard. So please know that times have changed. Hi Ashok, hello. So times have changed to the point that you have two options. Either you walk into a default future. By default future means everything is going to happen the way it is, and now you walk in unprepared thinking, what will I do, and try to adjust in that set thing. Or you create the future by creating impact with your actions, with your life today. These are the only two options, right? So it's like either be cause or be effect. Either create a future or walk into a default one. Let me explain to you. See, it's raining. It's monsoon in Bombay. Yes. So now imagine how people deal with life. Hi, Sushil. Welcome. Yeah, so I won't introduce myself again. I'm a motivational speaker. I'll do it one more time. I'm a motivational speaker, author, and screenwriter. And it's a pleasure to be addressing you guys. Hi, Genia. So it's raining outside, okay? Which means the weather has changed, right? Okay. Now I am using, I don't know if you can see my board with the words like this, or if it is flipped. If it is flipped, the word here is changed. Okay, the weather has changed from summer to monsoons. Now there are two ways people will deal with it. One is they will sit at home and wait for the rain to stop. Okay, it's good if you're sitting at home. We are under lockdown, but I'm talking about general circumstances. They wait, let things become okay, then I will study. Let things become okay, then I will make a decision. Let things become okay, then I will, go for a jog or go for a diet and so on. They wait for circumstances to change. It's literally like you have something important to do, but you're waiting for the rain to stop. The rain doesn't care about your plans, right? The weather does not care what vision you had. Circumstances are going to happen as they happen. Or you change, which means you adjust and get yourself an umbrella or a raincoat. Now this is about the weather, but such are choices in life. Circumstances will change, but you decide. You want to wait it out? You want everybody else to change and things to go away and become better? Or you take action in accordance with that change. And that is what I am urging you to do. Okay? Now, the minute there is change, and in our case of COVID, also crisis.
see, we are not just going through a change, we are also going through a crisis. All right, so two things you need to do first. Okay, first, number one, and see, this would really help, because you know, the crisis has also brought so much confusion, and in an artist's mind, in the mind of an artist, confusion is not good. Why artists are world leaders? Because they're very clear. You know how it is, when your mind is clear, you make the best music. Or when your mind is cluttered, you indulge in your art, so your mind calms down and you create, you know, genius level music and genius level art. So when there is crisis, first what you need to do is total up what are your skills and what are your resources. Okay, I like to write. See, I'm a writer, okay, and I am not the laptop kind of writer. Sushil is saying Hindi mein please. So we can see the flipped image. Oh, you can see the flipped image. Okay, fine. So this is skills and this is resources. Oh, okay. So this is the first time I'm using a board on a Facebook Live. So chaliye, no problem. I will use this as my guideline. तो मुझे सुशील बोल रहे हैं कि थोड़ा हिंदी में बोलें. So I will try to toggle, you know, between both Hindi and English. ठीक है? तो थोड़ा हम इंग्लिश में बात कर लेते हैं. ओके, सो जब क्राइसिस आए, पहले यू फाइंड, ओके देन आई एम नॉट गोइंग टू यूज द बोर्ड, आई मे बी जस्ट यूज इट टू ड्रॉ सम figures. Okay, so first you need to do is total up your skills and total up your resources. तो जब ये pandemic आया, I have to see what are my skill sets. Okay, communication, my skill set is I can write well, my skill set is I can speak well, my skill set is I have amazing connections. What are my resources? Yes, so Yashovardhan, I got it, so I'm not going to use the board again. What are my resources? I do have some savings. I do have some good friends. I have a great family, a great supportive family, and I have technology. I have my team. तो ये सब अगर आप टोटल कर लेंगे ना, आपके स्किल क्या है, आपके रिसोर्सेज क्या है, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा टू हैंडल द चेंज, एंड दैट इज व्हाट इज नीडेड. ओके, फर्स्ट, क्योंकि जब चेंज आता है और क्राइसिस आता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं हिल जाता है. वी फील ओ माई गॉड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देन वी वेट फॉर द रेन टू स्टॉप or we wait for circumstances to change. Then once your confidence is a little there that okay, I'm all right, मेरे पास strengths भी है, you know, मेरे पास resources भी है, तो once your confidence is intact, then you identify the problem. Okay, now if I had known this would be the problem, I would write in mirror image. Okay, so this word is problem. Then you identify the problem, that what is the actual problem for me. Okay, so now look, I am going to talk about me और आप उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करना. करेक्ट? ओके, सी आई गिव यू एन एग्जाम्पल. तो लेट्स से अगर आप मुझे बताएं व्हाट आर योर 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस. ओके, 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ आर्ट. लेट्स से अगर आप कोई अच्छे बॉडी बिल्डर से मिले, तो यू कैन आस्क देम व्हाट आर योर 5 बेस्ट प्रैक्टिसेस, मुझे बताओ. यू कैन देन टेक दोज, ट्वीक इट अ लिटिल बिट, उसको थोड़ा ट्वीक करके अपनी लाइफ के अकॉर्डिंग अलाइन करके यू कैन यूज इट. सो आई एम गोइंग टू गिव यू सम टिप्स फ्रॉम माई लाइफ. Now your responsibility will be कि आप उसको थोड़ा ट्वीक करो कि आपकी लाइफ में ये कैसे यूज होगा. ओके, अदरवाइज इट्स एन आइडिया. It's an idea for you to consider, use or park it away. So it is up to you. Okay. Now you identify the problem and see अब मेरे ऊपर क्या मुसीबत आई है. And it's correct. See, हालांकि क्राइसिस एक है. ओके, द लॉकडाउन एंड कोविड क्राइसिस एक है सबके लिए, पर सबकी मुसीबत ना अलग अलग है. राइट, तो मेरे ऊपर क्या मुसीबत है वो मुझे पहले आइडेंटिफाई करनी है, और मेरे क्या स्किल सेट्स और क्या रिसोर्सेज है उसमें कैसे सॉल्व हो सकता है. दैट इज वेयर माई होल अलाइंड focus should be if you really want to come out from any trouble. ये pandemic, ये पूरा लॉकडाउन तो एक बहाना है.
मैं ऐसे लोगों को बोल रही हूँ कि ऐसा मत सोचिए कि ये मुसीबत है, आप इस मुसीबत को एक मौका समझिए, क्योंकि लाइफ में तो मुसीबतें आती रहेंगी, ये एक है कल और होंगी, राइट। पर उससे डील कैसे करना, दैट इज़ एन आर्ट एंड स्किल, एंड दैट इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू गिव यू पॉइंटर्स, ताकि ये मुसीबत या फिर और कोई मुसीबत आए, चाबी एक ही है, तो वो चाबी मैं आपको देना चाहती हूँ। सो नाउ आई गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, सी लाइफ में ना आप कुछ भी करते हो, बेशक आप स्टूडेंट हो, हाउसवाइफ हो, एंटरप्रेन्योर हो, यू आर एन एग्जीक्यूटिव, नो मैटर हु यू आर, आपका ना एक दायरा होता है, दायरा, एक सर्कल ऑफ कंट्रोल। ओके, सो आई ड्रॉ दिस सर्कल हियर, सो दिस विल नॉट फ्लिप, इट्स कॉल्ड द सर्कल ऑफ कंट्रोल। तो इसके बीच में आप हैं, ओके, दिस इज यू। इसका मतलब ये है कि इस दायरे में जो भी प्रॉब्लम आए, यू नो हाउ टू सॉल्व इट। अभी बारिश हो रही है, आई नो हाउ टू सॉल्व इट, आई हैव एन अम्ब्रेला, मीन्स वो जो प्रॉब्लम आई है इस दायरे के अंदर, आई हैव द मीन्स, I have the resources, I have the talent, I have the contacts to solve it. तो it's not a problem. Then I'm ready for it. Okay? कोई बात नहीं, अगर आज थोड़ा कुछ तकलीफ हो गई, I can solve it. फिर क्या होता है ना, लाइफ में sometimes the problem comes out of your circle of control, जो अब हुआ है इस पैंडेमिक और लॉकडाउन के दौरान। ओके, अब प्रॉब्लम आ गई है outside your circle of इन्फ्लुएंस, आउटसाइड योर सर्कल ऑफ कंट्रोल, कि अब पता ही नहीं ये वायरस क्या है, अब पता ही नहीं कि मेरा जॉब रहेगा कि नहीं, अब पता ही नहीं स्कूल कॉलेज कब खुलेगा, एंड यू नो ऑल द होम मेकर्स आर थिंकिंग अब पता नहीं है कब घर से जाएंगे, राइट, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सब फंसे हुए हैं, सब, एवरीबडी हैज देयर ओन डिफरेंट सेट ऑफ कंप्लेंट्स एंड वरीज एंड वोज। सो नाउ अ प्रॉब्लम हैज कम आउटसाइड माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। तो क्या करते हैं ज़्यादा लोग, ओके, ज़्यादातर लोग, थैंक यू यशोवर्धन, थैंक यू सो मच। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दे बिकम विक्टिम्स। अब पता नहीं, दूसरों को फ़ोन करने लगते हैं। नाउ इमेजिन, ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा ना कि जो लोग कभी आपकी सुनते नहीं थे, अब वो आपको फ़ोन करके पूछते हैं, अच्छा आपका क्या ख्याल है, यू नो अब क्या होगा। पीपल आस्किंग ईच अदर अब क्या होगा, बट दैट्स नॉट द सोल्यूशन, नो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं क्या होगा। आज आप एक वीरोलॉजिस्ट जो वायरस में भी एक्सपर्ट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट, किसी को भी पता नहीं क्या होगा, एवरीबडी इज कंफ्यूज्ड, राइट। तो ये तो लाइफ ही है ऐसी। और ये पहले भी अगर ऐसा होता ना कि आपकी मुसीबत यहाँ आ गई है, तो नोबडी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम, वो आपको एडवाइस दे सकते हैं, पर अल्टीमेटली उस एडवाइस का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा वो आपको ही भरना पड़ेगा, करेक्ट। देन यू कांट गो बैक टू समबडी एंड से, ओ आपने मेरे को ऐसे बोला था, अब देखो सब बिगड़ गया। नोबडी टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडवाइसेस, ओनली यू कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर कॉन्सिक्वेंस। तो मुसीबत आ गई है आपके दायरे के बाहर। It could be somebody has lost their job and now they don't know what to do about it. It could be somebody's health has gone for a toss. It could be the income has come to a standstill. I don't know, whatever. So how do you solve it? इसको सॉल्व करने के लिए, ओके, लोग ऐसे सोचते हैं मैं इसी को ही सिर्फ हैंडल करूं, दिस इज नॉट अ सॉल्विंग, ऐसे तो नहीं होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा। You will have to holistically increase your circle of control and your circle of influence. That is the only correct handling. Let me give you an example. Okay, आप में से ऐसे कोई हैं जिन्होंने कभी सोचा कि मुझे वजन घटाना है, I want to lose weight. Anybody? You know, say yes, yes, yes. If you have thought of losing weight, कितनी सिंपल सी बात है ना, मुझे बस 5 किलो घटाना है, that's it. Okay, but क्योंकि आपने ये गोल बनाया है कि मुझे अपना वजन घटाना है, मतलब कि आज तक वो बात आपके दायरे से बाहर रही है, करेक्ट, ओके। सच अ सिंपल थिंग, आई वांट टू लूज 5 किलोज, ये तो भाई साहब इधर है। अब इसके लिए आपको अपनी डाइट बदलनी पड़ेगी, करेक्ट, और ऐसे नहीं कि भूखे रहेंगे। यू हैव टू चेंज योर डाइट, यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। आप ही नहीं, अब जो आपके घर वाले हैं, ओके, जो अब आपके लिए खाना बना रहे हैं, उनको भी चेंज करना पड़ेगा,
ओके फिर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. यू कांट गो आउट टू रेस्टोरेंट्स, यू कांट गो आउट एंड डू थिंग्स. मतलब फ्रेंडशिप में भी कुछ चेंजेस आएंगी, फिर घर पे भी कुछ चेंजेस आएंगी. ओके, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. फिर जब आप व्हेन यू विल लूज द वेट ऑल्सो, अब नए कपड़े खरीदने पड़ेंगे. यू गेट व्हाट आई एम सेइंग, राइट. तो एक चीज आपने सोचा कि मुझे ये चेंज करनी है, या मुझे ये बदलनी है, या मुझे ये पाना है. अकेले नहीं है ये, इसमें इट इज अ होल सर्कल ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू डू. ओके, आपको अपने फाइनेंशियल भी कुछ बदलने पड़ेंगे. ऐसा होगा ना कि आप बोलेंगे अब तो मुझे जिम ज्वाइन करना है, योर फैमिली इज नॉट ओके विद इट, कि तुम बर्बाद करोगे पैसे. पहले भी देखा था, जिम ज्वाइन किया था, गेट इट. थोड़ा फैमिली में टेंशन भी होगी, वो बोलेंगे तुम्हारा ये चलता रहता है ऑल द टाइम, यू नो थोड़ा कम खाओ. फिर जिस दिन मीठा खा लिया उस दिन और प्रॉब्लम, बोलेंगे क्या हुआ तुम्हारे वेट लॉस का. सो डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई एम ट्राइंग टू से एक इतनी सिंपल सी चीज है वेट लॉस, उसके लिए आपको पूरे दायरे में चेंजेस करनी पड़ेंगी. गेट इट. ओके, सो इमेजिन नाउ विद दिस पैंडेमिक कोई मुसीबत आई है. लेट्स से somebody has lost their job, or somebody has a health problem, or somebody has a financial problem. तो very quickly you know for sure कि मुझे इसको सॉल्व करने के लिए ना अपना दायरा बढ़ाना पड़ेगा. ओके, इफ somebody has lost their job, you know, I know of this gentleman, वो काम करते थे सोशल मीडिया का. ओके, तो बहुत अच्छा काम करते थे, और उनकी कंपनी ने दे लेड ऑफ पीपल दैट दे वर कॉस्ट कटिंग. तो अब 10 लोगों की जगह उनके पास 2 लोग हैं, 8 लोग वर लेड ऑफ, जो बहुत कंपनीज में हो रहा है. नाउ इमेजिन दैट जेंटलमैन इज नाउ हैविंग नो जॉब and financial problem, has 2 children, okay, and he has a full family, wife and 2 children. तो कहाँ से आएंगे पैसे? So you know what he did? He had a bike now which he uses for Swiggy delivery. तो कोई बोल सकता है, सी उनको चेंज करना पड़ा. उनकी फैमिली में बोल रहे हैं, ओ अच्छा आप तो मतलब डिलीवरी कर रहे हैं, तो उधर भी बातें सुननी पड़ रही है. एंड ही सेइंग नो आई एम फाइन, बुरा वक्त है, एंड हाउ वुड यू रिस्पेक्ट मी मोर, कि मैं बुरे वक्त में अपनी फैमिली के लिए खड़े हो जाऊं, या ये सोचूं कि मैं डिलीवरी नहीं कर सकता. यू गेट इट. तो उधर भी उसको संभालना पड़ रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अभी बारिश में वो जा रहे हैं, राइट, तो थोड़ा हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है. सो ही इज लुकिंग आफ्टर हिज हेल्थ. So to make one thing work, there are so many changes that are coming in a person's life. So why people, Mahendra sir, welcome, welcome up. तो वाई डू पीपल फियर चेंज? क्योंकि जब वो उतरते हैं ना टू टेक एक्शन टूवर्ड चेंज, दे रियलाइज ये तो बड़ी गेम है भाई साहब, ये तो थोड़ा ज़्यादा ही है. 5 किलो लूज करने के लिए सिर्फ खाना कम नहीं करना पड़ेगा, घर पे संभालना पड़ेगा, कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ेगी, थोड़ी हेल्थ को तकलीफ होगी, थोड़ी घर वालों को तकलीफ होगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. यस, सो what you must do always, see अब तो बुरा वक्त आ गया है. There are some people who are prepared for it and there are some people who are not prepared for it. कई लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि चलो मैं बच गया, मेरा जॉब ठीक है, और मेरे घर वाले ठीक है, मेरी हेल्थ ठीक है, मेरे फाइनेंसेस भी ठीक है. वेल डन कि आपने थोड़ा रिस्पॉन्सिबली थोड़ा काम किया है, जो आपने फ्यूचर का सोचा कि अभी आप यू सेलिंग थ्रू. सी ऐसा है ना, वी आर ऑल इन द सेम storm but we are in different boats. किसी के पास ना सिर्फ राफ्ट है, वो तो डूब रहे हैं, किसी के पास अच्छी बोट है, वो बचे हुए हैं, किसी के पास सिर्फ एक लकड़ी है, उस पे तैर रहे हैं. यू अंडरस्टैंड, एवरीबडी इज इन डिफरेंट बोट्स इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, लेकिन तूफान सबके लिए एक ही है. तो एटलीस्ट अब समझ में आ गया कि वेयर इज माई पोजिशनिंग, व्हाट इज माई स्टैंडिंग. ओके, तो जो लोग बच गए ना वो अच्छे शुक्रगुजार रहें एंड हेल्प अदर्स, बिकॉज आई एम ओके नाउ. I take the people who are on that raft and on that stick that you come in my boat. चलो आ जाओ, humanitarian basis पे. And a lot of people are helping. At least एक pandemic, yes pandemic ने ना बहुत humanity को जगाया है, and for that we all are grateful that people have come together, they have united. But there are people who are very very affected, whose families are affected. तो ये भी एक सीख है. See,
नेचर में भी ऐसा ही होता है ना, पीपल हु आर इन द डेजर्ट, हु आर कॉट इन दैट स्टॉर्म, यू नो, समुंदर में दे आर कॉट इन द स्टॉर्म, क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते, राइट? इफ यू आर कॉट इन अ डेजर्ट स्टॉर्म, यू जस्ट पुट योर हेड डाउन एंड वेट टिल द स्टॉर्म इज ओवर, कि बस जान बच जाए ना, एटलीस्ट उतना काफ़ी है। और कई लोगों के लिए ये समय आया है कि बस जान बच जाए ना, उतना काफ़ी है, ये 2 और दिन निकल जाए उतना काफ़ी है। इट्स ओके, सच इज़ लाइफ। और बेशक जो आज बड़े बैठे हैं, जो आज सेफ बैठे हैं ना कहीं लाइफ में उन्होंने भी एक बुरा वक्त निकाला है। यू अंडरस्टैंड? ये सबकी लाइफ में होता है कि एक और रात, एक और दिन, यू नो, इट्स लाइक द ICU वेयर द डॉक्टर सेज टुडे इज अ क्रिटिकल टाइम। आज ना आप सिर्फ पूजा कीजिए, बिकॉज और कुछ नहीं हो सकता। सो फॉर सम पीपल इट इज़ दैट टाइम, एंड इफ़ यू हैव फाउंड कि आप उस मकाम पे बैठे हैं वेयर यू फोल्डेड योर हैंड्स एंड योर होल फाइनेंशियल, पर्सनल, हेल्थ सिचुएशन इज लिटरली इन ICU, दिस वुड बी अ गुड रिफ्लेक्शन पॉइंट। ओके, तो ये है कि अगले टाइम अराउंड नो आई शुड बी प्रिपेयर्ड। सो हाउ डू यू डू दैट इज, और ये प्रैक्टिस ना आप या तो शायद कर रहे हैं या आज से शुरू कीजिए। एंड आई विल अर्ज यू, अगर आपकी और मेरी मुलाकात हुई है ना इस फेसबुक लाइव के थ्रू, देन मे बी दिस इज द मैसेज दैट आई हैव कम हियर फॉर, बिकॉज दिस मैसेज हैज सेव्ड माई लाइफ। यू नो, बहुत ही यंग एज में मैंने काम करना शुरू कर दिया, और अच्छे लोगों की गाइडेंस के अंदर। बहुत खुश किस्मत होते हैं लोग हु हैव करेक्ट गाइडेंस एट द राइट टाइम। नहीं तो ना ये एक बार नैया डूब जाती है ना, तो बहुत लोग एडवाइस देते हैं, अरे अरे ऐसा करना चाहिए था, ओ ऐसा करना चाहिए था। द एडवाइस इज करेक्ट बट इट्स अनटाइमली। अब करना चाहिए था का क्या करे, अब तो सब डूब गया, राइट? सो इफ यू आर गेटिंग करेक्ट एडवाइस एट द करेक्ट टाइम, that is valuable, and I'm telling you something, an advice which has been passed down to me, और ये advice, the thing that अब मैं लिख नहीं रही हूँ, is that you should have a tool box. Okay, कि आपके पास ना टूल बॉक्स में आपको कैसे समझाऊँ, फर्स्ट एड किट, ओके, वो एक टूल बॉक्स होता है ना घर में, जिसके अंदर वो रेंच और स्क्रू ड्राइवर, मतलब सब चीज़ें आपने रखी हुई हैं, क्योंकि वो एन मौके पे जाके आपको वो मोबाइल फ़ोन का सिम कार्ड डालना है, अब वो पिन नहीं है। यू अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ इट। अभी अगर आपके पास वो पिन नहीं है, फिनिश्ड, यू कांट मेक अ कॉल, यू कांट बी कनेक्टेड ऑन व्हाट, यू डोंट हैव अ pin. So you should have a toolbox of life skills कि end of the day, I'll tell you, end of the day जो आपको बचा लेगा ना, जो आपको हर मुसीबत से निकाल लेगा, वो क्या चीज़ें हैं वो आपके टूल बॉक्स में होनी चाहिए। और अभी आप देख लीजिए, यू नो, ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं एक लॉन्ग ड्राइव पे तो चेक करते हैं ना, मेरी स्टेपनी है, फर्स्ट एड किट है, उसके अंदर डेटॉल है, थोड़ा पेन किलर्स है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो व्हाट इज द टूल किट ऑफ लाइफ? फर्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, ये आपको दिखेगा नहीं, इट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बेशक लैंग्वेज ना अच्छी हो, एक्सेंट ना अच्छा हो, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड हैव दैट extroversion that you can make your point and make it to anybody you feel like. I tell you, लोग ना इतने दबे हुए हैं ऑलरेडी, बोलते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि आप समझ जाओ, नहीं समझता कोई भी, राइट? स्पेशली मैरिज में अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि मेरे हस्बैंड को समझना चाहिए, वाइफ को समझना चाहिए, तो अब तक तो आप ये समझ गए कि कोई नहीं समझता जब तक आप बोले ना। सो you need to know how to speak up, how to talk and how to make your point. डरना नहीं है। and for that if you have to invest a little bit, do it. आज अगर आप बैठे हैं ना लॉकडाउन में, और अगर आप मेरा ये लाइव देख रहे हैं ना, तो आप और 2-3 वर्ड्स टाइप करके एक पूरा एक कम्युनिकेशन कोर्स कर सकते हैं। ऑलराइट, देन यू नीड टू हैव नॉलेज अबाउट योर बॉडी। ये जो पैंडेमिक और लॉकडाउन है ना, इसने तो एक चीज सिखा दी है कि देखिए हमें अपनी बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं, नथिंग वी नो, तब भी तो इतना लोग डरे हुए हैं। डिड यू नो इफ योर इम्यून सिस्टम इज लो, देन यू आर ससेप्टेबल नॉट जस्ट फॉर कोरोना, नॉट जस्ट फॉर कोविड-19 बट फॉर एनीथिंग, करेक्ट? तो मेरी ना बात हो रही थी कुछ दोस्तों के साथ, तो वो बोल रहे थे अरे ऐसा थोड़ी होता है बॉडी, मतलब इतना तो नॉलेज होता है सबको अबाउट द बॉडी। ऐसे ठीक है, आप खड़े हो जाइए और मुझे बताइए आपका लिवर कहाँ है,
point, यहाँ जैसे how you say no, show me where are your eyes here, where is your nose here, where is your mouth here, show me where's your liver. पता ही नहीं लिवर कहाँ है. पैनक्रियाज बताओ, पैनक्रियाज कहाँ पे है, नहीं पता. तो यू नीड टू रियली इंक्रीज योर नॉलेज अबाउट योर बॉडी, क्योंकि वो अगर फेल हो गई ना, आपको पता होना चाहिए हाउ शुड आई एटलीस्ट हेल्प इट, कि क्या दुख रहा है. पेट दुख रहा है, पर पेट, दिस डायफ्राम हैज सो मेनी अदर ऑर्गन्स. यू अंडरस्टैंड, ये कोरोना वायरस कैसे काम करता है. एम आई सेफ, एम आई एट रिस्क. अगर मेरे आजू बाजू में लोगों को इफ दे आर अफेक्टेड, व्हाट आर माई चांसेस ऑफ गेटिंग इट. यू अंडरस्टैंड, एंड हाउ कैन आई इंक्रीज माई हेल्थ एंड फिटनेस. In the future, you can write this. I will put my sign, I'll put my signature on it, that health will become a very big issue. Don't expect doctors to look after you. अगर आप डॉक्टर के हाथ में पहुंच गए ना, it's already too late. Sorry, it's already too late. आपको वहां तक जाना ही नहीं है. हम, our country, if you look, Ayurveda, we are the top. वी आर द, पूरे मेडिसिन के स्क्रिप्चर्स हमारे पास है. डू यू नो पीपल इन द वेस्ट, दे स्टडी आवर स्क्रिप्चर्स एंड कम एंड सेल इट बैक टू अस. All the food that you eat has medicinal qualities. तो एटलीस्ट आधा घंटा दिन का, चलो 15 मिनट दिन का निकाल के do some research on your body. That is a part of your toolkit. How will this information fail you? अगर आप 15 मिनट रोज का you understand, सर क्यों दुख रहा है, why do I have pimples, why is my skin itching, why मेरा पेट क्यों दुख रहा है, how to solve it. Is that a skill set to have for life? Yes. क्योंकि ना अगर आपकी बॉडी हेल्दी है ना, तो माइंड भी हेल्दी रहेगा. करेक्ट. अगर आपका सर दुख रहा है तो दिमाग खराब होगा. राइट. एक तो सर दुख रहा है, ऊपर से नेगेटिव न्यूज आ रही है. हाउ विल यू हैंडल थिंग्स. पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, फिर अभी बोल रहे हैं आवाज कम करो, डोंट ट्रबल मी, इरिटेशन हो रहा है, एंड यू आर स्पॉइलिंग थिंग्स मोर. अ हेल्दी बॉडी विल लीड टू अ हेल्दी माइंड. सो एंश्योर दैट यू स्टडी ऑन योर बॉडी. और अगर मुझे मौका मिलेगा ना आपसे फिर बात करने का, तो मैं पूछूंगी आपसे वेयर इज द लिवर, वेयर इज द पैनक्रियास. तो एटलीस्ट उतनी नॉलेज तो आपको होनी चाहिए. ओके. देन हाउ यू नीड टू हैव अ टैलेंट. ये मैं लिख रही हूँ, पता है मुझे, आपको नहीं दिख रहा है. टैलेंट एंड स्किल. देखिए, अगर आप किसी से पूछे ना व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, पता नहीं, दैट्स वेरी सैड. कोई ना कोई चीज में तो आपकी मास्टरी होनी ही चाहिए. अगर आपने किसी चीज में मास्टरी नहीं किया ना, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा. एटलीस्ट एक चीज होनी चाहिए जिसमें इट इज दिस इज व्हाट दिस पर्सन इज वेरी वेरी गुड एट, एंड मास्टरी ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस. बेशक आपकी मास्टरी है लेट्स से खाना बनाने में, that's a big thing. At least that is your thing, right? And where does mastery come from? Education, learning and practice. तो एक तो आपका वो USP होना ही चाहिए. नहीं है आज तक तो build it. आज शुरू करेंगे तो 1-2 साल में कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे, right? Okay? So that टैलेंट एंड स्किल यू शुड हैव, कि जब आपका नाम लिया जाए तो आपके साथ क्या जोड़ा जाए. alright? So that is compulsory. Then you should have knowledge about your industry. देखो, सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है या इतना ही काफ़ी नहीं है कि आई एम एन HR प्रोफेशनल, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई एम अ होम मेकर. ये इंडस्ट्री कहाँ जा रही है. विल यू बी वैलिड और नॉट. ओके. इंडस्ट्री में क्या चेंजेस हो रहे हैं, विल यू बी वायबल और नॉट. द इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, विल यू बी प्रॉफिटेबल और नॉट. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई गिव यू एन एग्जाम्पल. तो आई एम राइटिंग द बायोग्राफी ऑफ पुलेला गोपीचंद. ओके. तो वो आप जानते हैं पुलेला गोपीचंद को. इफ यू नो हिम तो प्लीज शो मी, टेल मी येस दैट यू नो. ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपियन इन बैडमिंटन. और अब वो कोच हैं PV सिंधु, साइना नेहवाल, इनके जो नाउ ही इज अ नेशनल कोच फॉर बैडमिंटन. तो जब मैं उनसे व्हेन वी वर हैविंग दिस टॉक अबाउट द बायोग्राफी, तो one of his team members, okay, वो interview कर रहे थे बहुत सारे authors को. Obviously, you know, at his level, they want to work with somebody who is also not just accomplished in their talent and skill, but they also have very good knowledge of the industry. Would you not agree? अगर आप एक sports person हैं और आपको world champion बनना है, तो you need to know your skill, you need to know your sport,
and you also need to know the industry of sport and badminton, correct? तभी तो आप वर्ल्ड चैंपियन बन सकते हैं, राइट? एंड टुडे टेक्नोलॉजी हैज गिवन ग्लोबल एक्सेस, तो आपकी विजन तो होनी ही चाहिए ग्लोबल, और अगर आपकी विजन ग्लोबल है तो आपको पूरी इंडस्ट्री का पता होना चाहिए. तो व्हेन आई वाज स्पीकिंग विद वन ऑफ हिज टीम मेंबर्स हु वर शॉर्टलिस्टिंग द ऑथर्स, तो उन्होंने मुझसे पूछा, प्रिया व्हाट इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन राइटिंग? ओके, तो मैंने बोला द वर्ल्ड रिकॉर्ड इन राइटिंग इज 1084 बुक्स. सो द पर्सन सेड, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु हैज नोन द आंसर करेक्टली, कि आप अगर ऑथर हैं तो आपकी विजन क्या है? आपकी विजन है 1-2 किताबें या वर्ल्ड लेवल? अगर वर्ल्ड लेवल की विजन है तो आपको नॉलेज होनी चाहिए, राइट? हु इज द टॉप? how many copies of the earlier biography sold? You have to know all of this information about your industry. That is your toolkit. तो मुझे इतना मत बोलिए कि I am into social media, I do influencer marketing. मैं आपको इंडस्ट्री के 2 सवाल पूछूंगी, आपको उसका भी जवाब आना चाहिए. Only then you will be valuable. A lot of times people think my skill is enough, but your skill is also in a context at a world level, correct? आपका फ्यूचर कितना है, वो आपको कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? when you know the industry. Okay, then another valuable thing you need to have in your toolbox is a list of all your past achievements. Okay, now this is my favorite one. मुझे पता है आपको नहीं दिख रहा है, this is past achievements. आपके पास एक पूरी लिस्ट होनी चाहिए that what all have you achieved so far. See, क्या होता है ना, जब बुरा वक्त आता है, जब कठिनाई आती है, तो हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है. लेट्स से somebody has lost their job, टूट गया कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब उन्हें पता नहीं कि अब कहीं जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और लोग इतना डरा रहे हैं और आपको दूसरों की बातें सुना रहे हैं, उसका नहीं सुना, इसका नहीं सुना, और फिर कहीं से आपको होप नहीं मिल रही है, करेक्ट? तो लाइफ में ना बहुत बार ऐसे होता है कि हमारी उम्मीद टूट जाती है, होप टूट जाता है टेम्परेरीली, एंड वी फील ओ माई गॉड नथिंग कैन हैपन इन माई लाइफ. तो बेशक लोग आपको कितना भी हौसला दे, नो नो डोंट वरी, it doesn't help sometimes. Yeah, it helps to know that I have good supportive friends, but sometimes their words of encouragement don't hit home. Okay, हमें ऐसा लगता है फेक है, ये समझ नहीं रहा मेरी क्या मुसीबत है. At that time your past achievements will come in handy. Okay, तो पिछले साल ना मैंने ये किताब लिखी थी Turn the Tables. अब मुझे क्या पता था, मुझे वो किताब पढ़नी पड़ेगी 1 साल बाद. So Turn the Tables, so that's my book. I have it handy, I'll show you. Okay, so it's called Turn the Tables. ये तो पूरा टर्न ही है, देखो. Turn the Tables from Challenges to Opportunities. अब इस किताब में मैंने लिखा है कि मैंने लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस किए and how I overcame it. जब सबने कहा था प्रिया you will not make it, I made it. Okay, और कभी कभी ना हमें अपना पास्ट याद रखना पड़ता है कि देखो when I was 13 years old I started working, I started creating an income for myself. जब मैं 13 साल की थी, 13 साल पे तो एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि आप कुछ करेंगे या you will become an earning member of the family. तो I could do that, I'm the same person, right? तो today I can do more. तब डर नहीं था, अब कहाँ से डर आ रहा है, right? So keep a list of your personal achievements. और आप सब के पास ना एक बास्केट भरा हुआ है कि मेरे को ऐसे बोला था you can't do anything, ये तुमसे नहीं होगा, you are too old, you are too young, you don't have money, you don't have the right contacts, तुम्हारे पास तो टैलेंट भी नहीं है, और फिर भी आपने किया, राइट? you're too weak, you're too young, too old, जो भी उन्होंने आपसे कहा, पर किया आपने. मैं मान ही नहीं सकती कि आप में से ऐसे कई लोग हैं who have not achieved anything. It's not possible. Okay? तो जब आप वो लिस्ट, एक पास्ट अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाए ना, keep it as your uplifting source, क्योंकि ये सच है. मैं आपको कोई और कहानी सुनाऊं आपका हौसला बढ़ाने के लिए, वो शायद सच हो या ना हो, वो आपके काम की हो या ना हो, पर जो आपका पास्ट है ना, if you can make some points and use your past to inspire your present for a better future, you've set yourself a winning attitude for life. So this toolkit is very, very important for you to have.
नाउ I'd also like to add in this is मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग रीडर्स हैं, you know how many of you read books. If you read books, प्लीज टाइप yes. ओके, मैं आपको एक बात बताती हूँ, आई एम अ राइटर. ओके, मैं ऑथर हूँ, लेखक हूँ. मैंने 12 किताबें लिखी हैं, पर मैंने ना 500 से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं यार. सो आई एट्रीब्यूट, जो मेरी सक्सेस है ना, आई एट्रीब्यूट इट to the books, the quality of content I have read, the amount of knowledge that I have gained. तो बेशक आप और मेरा ये मानना है कि जो आर्टिस्ट है ना वो रीडर्स हैं, वो सीखने के लिए ईगर है. हाउ डू यू बिकम एन आर्टिस्ट, हाउ डू यू बिकम अ म्यूजिशियन, हाउ डू यू बिकम अ सिंगर, यू लर्न, राइट. तो ये आर्टिस्ट में ना लर्नर्स एटीट्यूड बहुत कूट कूट के भरा हुआ है. हम तो गुरु ढूंढते हैं रोज, राइट, और हम इज्जत भी देते हैं गुरु की. बहुत कम प्रोफेशंस हैं वह ये गुरु शिष्य के रिलेशनशिप वाले. कोई मानता ही नहीं है किसी को गुरु, कोई किसी को बड़ा ही नहीं मानता है अगर आप ये कला के बाहर जाए. सो आई लव आर्टिस्ट फॉर दैट रीजन, दैट वी आर सीकर्स एंड लर्नर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर लाइफ. तो आई एम गोइंग टू एड in your toolkit to read self, अभी दिखेगा नहीं बट हाँ ये तो बाहर हो गया, बट I'll write here self help books. Okay, of course स्टोरीज भी पढ़िए, ये उल्टा जा रहा है बट सेल्फ हेल्प लिखा है मैंने. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल माई बुक टर्न द टेबल्स वुड बी अ सेल्फ हेल्प बुक. आप मेरी ये बुक शेल्फ देखेंगे, मेरी 80% कलेक्शन इज सेल्फ हेल्प बुक्स. ओके, अब ऐसा होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं कोई सेल्फ हेल्प बुक पढ़ूं तो वो पूरा कंटेंट मेरे लिए है. सो आई हैव अ ट्रिक एंड आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. बिफोर यू रीड अ सेल्फ हेल्प बुक, व्हाट आई डू इज ऑन अ पेज आई राइट माई प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस. ओके, जैसे अभी मेरा प्रॉब्लम और चैलेंज है, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई इनकम. ओके, आई वॉन्ट टू मेक अ बेटर, मतलब ऐसा है कि लॉकडाउन का टाइम आई वॉन्ट टू यूज़ कि जब ये ख़त्म होना, मैंने यहाँ पे लॉकडाउन शुरू हुआ था मेरे करियर में, जब लॉकडाउन ख़त्म हुए तो मेरा करियर यहाँ हो. ओके, आई वॉन्ट टू मेक अ करियर एंड प्रोफाइल जंप एंड आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई इनकम. ये मेरी प्रॉब्लम है और ये मेरा चैलेंज है. नाउ व्हेन आई रीड अ सेल्फ हेल्प बुक, मैंने वो बुक स्टार्ट की है ये 2 सवालों पे. ओके, अब when I'm reading, I am looking for those answers. Yes, I will get other answers also, but I'm looking for these answers. So I would recommend कि आप at least 5 self help books तो अभी खरीद लें. Okay, now write down all your challenges and I will guarantee you that it doesn't matter which genre you buy, whether it is finance, whether it is personal development, whether it is communication, whether it is relationships, या फिर आपका स्किल ही हो, जो भी आप काम करते हैं स्किल बेस्ड, अगर आपने बुक ले ली you will find your answers and that is life changing. तो जो आपको जवाब मिलेगा ना वो आपकी समझ से मिलेगा. सी लाइफ में लोग हमें समझाते हैं ऐसा करो, ऐसा सोचो, ये नज़रिया अडॉप्ट करो, बट इन अ बुक द ऑथर हैज़ रिटन, when you're reading it is up to you how you connect the dots with your life. So my last recommendation on the toolkit is have at least 5 personal self-help books. Okay, ये लाइव के बाद आई विल राइट ऑल्सो सम फॉर यू कि ये 5 बुक्स आप यू कैन डेफिनेटली रीड. आई वुड पुट दैट रिकमेंडेशन. ओके, नाउ अब ये जो बुरा वक्त आया है ना, लेट मी टेल यू, बहुत लोगों का ना दिल टूटा है. अब उन्हें समझ में आ गया कि ये तो मेरे दोस्त ही नहीं थे. अभी उन्हें समझ में आ गया नेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है उन लोगों से जिनसे उन्हें उम्मीद थी, जहाँ दे एक्चुअली एक्सपेक्टेड दैट मेरा ख्याल रखेंगे, या दीज आर माई परफेक्ट एम्प्लॉयर्स और दीज आर माई ग्रेट सबॉर्डिनेट्स. अब ना बहुत लोगों का दिल टूटा है कि ये वैसे नहीं थे, अब समझ में आया. और करेक्ट बात है, एक बुरे समय में ही लोगों की पहचान होती है. लेट मी एक्सप्लेन टू यू. ओके, नाउ गोल्ड, ऑलराइट, इफ यू लाइक गोल्ड, इफ यू हैव वॉन गोल्ड, तो मुझे बताओ, टेल मी व्हाट इज अ गोल्ड का कैरेट. ओके, कि मुझे बताओ, ये मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि अगर आपके पास है 24 कैरेट गोल्ड और आपके पास है, ये दिख रहा है, हाँ, ओके, अगर आपके पास है 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 18 कैरेट गोल्ड. ओके, तो ये उल्टा दिख रहा है, 24, 22 और 18 कैरेट गोल्ड.
तो 24 कैरेट गोल्ड में गोल्ड का कैरेट क्या है और 18 कैरेट गोल्ड में गोल्ड का कैरेट क्या है, मुझे बताओ. इज इट दैट 24 में 24 है और 18 में 18 है? इज इट? लेट मी सी हाउ मच यू नो मुझे सी दैट इज व्हाट आई मिस ऑफ ऑल माई लाइव इवेंट्स. अगर ये हम इफ वी वर टॉकिंग फेस टू फेस नो, तो आई वुड से ओके शो मी योर हैंड, यू आंसर. अब प्रॉब्लम यह है यहाँ पे दिख नहीं रहा कोई, तो आई ओनली हैव टू लुक एट द कॉमेंट्स एंड कॉमेंट्स आर कमिंग डिलेड. सो लेट मी टेल यू व्हाइल यू राइट योर आंसर्स, लेट मी टेल यू 24 कैरेट गोल्ड में द गोल्ड कैरेट is 24. 18 कैरेट गोल्ड में the gold carat is 24. इसमें कम नहीं है, okay? But how does 24 कैरेट गोल्ड become 18 कैरेट? क्योंकि उसमें मिलावट की जाती है. गोल्ड के साथ they have put silver, they have put other alloys, okay? गोल्ड के साथ, you understand what I'm saying? There still is 24 कैरेट गोल्ड, पर वो मिलावट है साइड में. तो क्या होता है ना, जो सिल्वर है वो मिलावट में प्रिटेंड कर रहा है आई एम गोल्ड 18 कैरेट, और सिल्वर की तो चांदी हो गई. यू नो व्हाट आई मीन. सिल्वर की चांदी मतलब सिल्वर इज नाउ प्रिटेंडिंग टू बी गोल्ड, उसको तो 18 कैरेट का स्टेटस मिल गया. पर जो 24 कैरेट गोल्ड जो ओरिजिनल है वो सिल्वर की वजह से उसकी वैल्यू घट गई. यू गेट इट? ओके, उसके साथ अब डाल दिया पीतल. अब पीतल की भी चांदी हो गई, वो तो गोल्ड बना फिर रहा है गोल्ड के साथ. अब इस बुरे वक्त में ना आपको पता पड़ जाएगा आपके साइड में कौन सी मिलावटें थी जो आपके दम पे 18 कैरेट 22 कैरेट गोल्ड का स्टेटस ले रहे थे. है तो वो सिल्वर. तो व्हेन द हीट इज टर्न्ड ऑन, जब ये बुरा वक्त आता है ना, व्हेन द हीट इज टर्न्ड ऑन एंड व्हेन टाइम्स गेट टफ, जब वो एक आपको पता है गोल्ड को मेल्ट होने के लिए टेम्परेचर चाहिए 1984 डिग्री फ़ारेनहाइट. जब इतनी हीट बढ़ती है ना 1984 फ़ारेनहाइट, तब सिल्वर निकल जाता है, तब क्या बोलते हैं कॉपर निकल जाता है, तब सब निकल जाता है. ओके, सो तब जाके आपको पहचान होती है. तो बी थैंकफुल, ये सब मिलावट निकली है, आप कम नहीं हुए हैं. आप तो तब भी 24 कैरेट गोल्ड थे, अब आपका एक्चुअल वैल्यू आया है after these people have fizzled away or shown you their true faces. So always welcome adversity, always welcome crisis. तब आपको पहचान होगी लोगों की, लेकिन आप लोगों को पहचानने में अपनी पहचान मत कम कीजिए. Because if you are gold, your status is intact. बी ग्रेटफुल. पता पड़ गया ये कौन है, पता पड़ गया ये कौन है, ये सिल्वर है, ये कॉपर है, एंड सो ऑन, एंड नोट दैट डाउन फॉर लाइफ. फिर आगे अगर आपको उनके साथ जुड़ना है तो इट इज अप टू यू. बट इट्स अ वेरी वेरी गुड एंड पावरफुल लेसन, क्योंकि अगर आपको आगे जाना है ना लाइफ में, तो लोगों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है. अगर आप गलत लोगों के साथ जुड़ गए, और आपने देखा भी है इतने फेमस लोग, इतने टैलेंटेड लोग, पर कंपनी ऐसी है ना उनको तबाह कर दिया. सम पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ रॉन्ग कंपनी. पहचान नहीं सके. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, राइट? तो बुरा वक्त आया भी, उन्होंने अपने ऊपर शक किया कि मैं मिलावट हूँ और ये सोना है. तो बुरा वक्त ना इज सो प्रेशियस for you to understand life. So don't get emotional, be a little objective. और ना किताबों को अपना दोस्त बना के रखें, क्योंकि ना लोग कई बार ना कुछ भी एडवाइस देते हैं, वो हमारा हौसला बढ़ाने की जगह इनोसेंटली ना हमें कई बार बहका देते हैं, या कई बार गुमराह कर देते हैं, या कई बार और कंफ्यूज कर देते हैं. जब आप बैठते हैं ना एक किताब पढ़ने के लिए ऑथर के साथ, इट्स जस्ट यू and that knowledge. Sometimes not even that author, that one sentence can sometimes change your life. You know, Oprah Winfrey का एक sentence था, it's my tagline. वो sentence था, I am enough by myself. You know, so that is enough for me, कि मैं काफ़ी हूँ, मुझे नहीं चाहिए कोई भी, और कोई मुझे ना समझ सकता है, ना मेरे लिए कोई जंग लड़ सकता है. करेक्ट, राइट? सो हैविंग दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस आई थिंक इज़ वेरी वेरी गुड. सो अप्रिशिएट टफ टाइम्स, और जैसे ही टफ टाइम आए ना, स्टार्ट ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड यू एंड मेक योर लिस्ट एंड लर्न एंड रीड बुक्स. ऑलराइट, सो नाउ लुक, एंड एंड ऑफ द डे नो, आपको अपना ही देखना है, आपको अपना ये टूल किट बढ़ाना है.
आपको ये अपना टूल बॉक्स बढ़ाना है ऑफ लाइफ स्किल्स. आई टेल यू व्हाई. बिकॉज एंड ऑफ द डे ना हम सब अकेले ही हैं. ऐसा है दैट एंड ऑफ द डे यू स्लीप अलोन, करेक्ट. आप अपने दुख अपनी खुशी उसके साथ सोते हैं. बेशक आपके पास कितना पैसा है या नहीं है, बट एंड ऑफ द डे इट्स यू एंड योर सेल्फ. और ये जो क्राइसिस आया है ना, ये एंड ऑफ द डे ही हो गया हमारे लिए कि हम ही बचे हैं और कोई बचा भी नहीं है. मिल भी नहीं सकते हैं किसी से. सो मेकिंग श्योर दैट इफ आई एम अलोन, नो प्रॉब्लम, आई विल इंक्रीज माई टूल किट. एंड बाय द वे, क्योंकि अब हमारी टूल किट की बात हो रही है, लेट मी ऑल्सो टेल यू वन टूल फॉर द फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी. बिना आई वॉज अ काइंड ऑफ पर्सन, मुझे टेक्नोलॉजी बिल्कुल पसंद नहीं थी. पीपल वुड से तुम मास्टर क्लास करो, वाई डोंट यू गो डिजिटल वर्कशॉप्स करो. एंड ऐसे मुझे सब पसंद नहीं है डिजिटल वर्कशॉप्स. आई एम अ लाइव पर्सन. गेस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, ओनली डिजिटल वर्कशॉप्स. अब ऐसा है, while I hope and pray कि I will have a one-to-one, face-to-face interaction with you, I cannot deny the fact that digital is the way of the future. अब ऐसा हो जाएगा वक्त, और होगा ज़रूर. There is no more speculation that you will no longer have to give your paper business card. Your digital footprint will be your business card. आज we were hiring a few people, तो बहुत resumes आए. And when we shortlisted people, पूरा सोशल मीडिया देखा उनका क्या चल रहा है, कौन है ये, क्योंकि हम मिल नहीं सकते ना किसी से, तो उनकी जांच करते हैं हम डिजिटली. अभी अगर आपको बताया कि मिस प्रिया कुमार इज कमिंग, तो आपने भी थोड़ी जांच कर ली ना कि कौन है, और पूरा पता पड़ जाता है आज सोशल मीडिया पे. यू कैन गो टू अ पर्सन's इंस्टाग्राम, व्हाट इज हैपनिंग ऑन देयर लाइफ, इन देयर लाइफ, हाउ दे थिंक, what their vision is, what their personality is. आपको सब पता पड़ जाएगा पोस्ट देख के. You get it? उनका जो हैंडल है उसका नेम देख के आपको पता पड़ जाएगा. एक अकाउंटेंट ने मेरे को अप्लाई किया, वी वर लुकिंग फॉर समबडी टू वर्क पार्ट टाइम फॉर माई अकाउंट्स. तो ये बंदे ने अप्लाई किया, सॉरी, तो उनका इंस्टाग्राम हैंडल क्या था, साइको 2020. साइको 2020 and I'll handle you and I will take you on to handle my accounts. मतलब आपकी ये सोच है साइको 2020. तो people are watching you online. आप ये जान लीजिए, बेशक वो आपकी पोस्ट पे लाइक ना क्लिक करे, पर देख तो लिया है. ऐसे भी बहुत लोग होते हैं. आप मुझे बताइए, आप कितनी पोस्ट देखते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे? डू यू लाइक ऑल द पोस्ट? नो, यू डोंट. दिन में मे बी 2-3 यू मस्ट बी लाइकिंग, वो भी दोस्त हैं इसलिए, राइट. बट इफ इमेजिन इफ यू हैव सीन सो मच and not left a footprint, how many people have seen what you're doing? Tomorrow if you want powerful collaborations, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे लोग आपके साथ जुड़ें, तो वो क्या जान रहे हैं आपके बारे में? Okay, use technology to build a पावरफुल फुटप्रिंट. आप जो भी पोस्ट डाल रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, 2 बार पूछिए अपने आप से कि इसका मेरे ऊपर क्या असर आएगा. व्हाट विल समबडी थिंक अबाउट मी? सी, इट मैटर्स टुडे. इफ़ यू रियली, ये अगर टेक्नोलॉजी ही जाएगी ना अभी आगे, तो वहीं पे आपका पूरा इम्प्रेशन बनेगा. सो यूज सोशल मीडिया टू बिल्ड अ वेरी पावरफुल आइडेंटिटी फॉर योर सेल्फ. और आप बेशक आज स्टूडेंट हैं या एंटरप्रेन्योर हैं या कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव हैं, आज से ही योर लिंक्डइन शुड बी योर फोर रनर. ओके, आपका बेशक इंस्टाग्राम का प्रोफाइल अच्छा हो ना हो, फेसबुक ना हो, पर एक लिंक्डइन तो होना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज end of the day, we all are career minded people, right? You all are musicians, you all are singers, you all are from such rich legacies. तो एक LinkedIn तो होना बहुत ज़रूरी है to connect with producers, to connect with sound engineers, to connect with directors. आप देखेंगे भरे हुए हैं वहाँ पे, and they are also looking. See, they are not just looking for talent, they are looking for professional talent. तो आपको थोड़ी professionalism दिखानी पड़ेगी using technology. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो भी डिजिटल फुटप्रिंट है, इट शुड बी, वो एक तीर के जैसे सीधा होना चाहिए विद योर पर्पस, विद योर विजन, विद योर गोल्स. ओके, आप कौन हैं वो बहुत क्लियरली पता पड़ना चाहिए इन योर प्रोफाइल. तो
टेस्ट इज कि आप किसी से कहिए जो आपको नहीं जानते हैं कि ये आप प्रोफाइल देखिए और बताइए कौन है, थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइए, एक पैराग्राफ लिखिए इनके बारे में। आपको बायो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू नो आपकी जो पिक्चर्स और आपकी जो लिखाई है उसी में ही आपकी पूरी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का प्रेडिक्शन हो सकता है। Ensure that you make a very very powerful LinkedIn profile and that you connect with people. Use technology to push you further. इसको आप टूल बॉक्स में डाल ही दीजिए। ओके, अब ये सब आपने अगर ख्याल रख लिया ना, I'm just seeing the time, I have another 7 minutes with you. अगर आपने इस सब चीज़ों का ख्याल रख लिया, पर अगर आप मेंटली स्टेबल, मेंटली फिट, मेंटली स्ट्रांग नहीं है ना, तो सब बिखर जाएगा। आई मीन आप खुद वाकिफ़ हैं इस बात से, यू आर विटनेस टू इट, दैट हमने ना इतने टैलेंटेड लोग देखे हैं दैट यू फील दैट हिज लाइफ इज़ परफेक्ट, that I wish I had his kind of looks or his kind of contacts or his kind of voice or talent, correct? आपने ऐसे लोग देखे और बिखर जाते हैं वो, and then you wonder ऐसा क्या हो गया या, और हम हैरान बैठे रहते हैं कि इतना सब हो के भी वो तबाह कैसे हो गए। Why? Because they couldn't handle emotions well. They couldn't have कहीं ना कहीं तो कुछ तो कमी रह गई इन लाइफ स्किल्स। नाउ लेट मी टेल यू वन वंडरफुल थिंग एंड दैट इज माय लास्ट टिप फॉर द इवनिंग। यू नो आई विल टेल यू अ वंडरफुल टिप अबाउट इमोशंस। ओके, ये आपको बोर्ड पे उल्टा दिखेगा। ये ना एक्चुअली द ट्रिक इज इफ यू डू अ फेसबुक लाइव फ्रॉम जूम तो ठीक दिखता है, या वो लेंस पता नहीं कुछ ऐसा है जूम में सॉफ्टवेयर, पर फेसबुक लाइव पे ऐसे उल्टा दिखता है। सी इमोशंस, ये इमोशन के अंदर, ओके, इमोशन के अंदर ये वर्ड है मोशन। ओके, मीन्स मोशन, मेरी क्या मोशन, मीनिंग मेरा क्या एक्शन होगा, दैट डिपेंड्स on my emotion. Let me give you an example. If you are very happy, okay, अभी आपको न्यूज़ आई कि आपका प्रमोशन हो गया है, 30% इंक्रीमेंट मिल गया है और आपको एक ट्रॉफी मिल रही है और पूरी कंपनी, ओके, 200 एम्प्लॉयज़ के सामने आपकी वाह वाह हुई है, ओके, पूरा एक वेबिनार करके, एंड यू आर ऑन क्लाउड 9, आपके हर ग्रुप में मैसेज आ रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर द बेस्ट एंड रूटिंग फॉर यू एंड सो ऑन। और फिर आके आपकी मम्मी जी या आपकी वाइफ बताती है कि यू नो आपकी घड़ी टूट गई, वो जो घड़ी थी वो टूट गई। यू से कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, घड़ी टूट गई और ले आएंगे, 10 ले आएंगे, कोई बात नहीं। और आप बुरा मत मानो, होता है लाइफ में, चीज़ें टूटती हैं, यू नो, पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। व्हाई विल यू एक्सेप्ट इट? क्योंकि इतना अच्छा मूड है। अब देखो, चिक्की हैज़ कम, या दिस इज़ चिक्की, ये मेरे सारे लाइव्स में आती है। तो अब ऐसा है ना, इनको हम बोल नहीं सकते कुछ, तो जब वो आती है उसको उठाना पड़ता है और उठा के थोड़ी बात करनी पड़ती है, तो चली जाएगी। तो एनीवेज, सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज कि क्योंकि मूड इतना अच्छा है ना, तो दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रंट कैम। हाँ, ओ अच्छा, थैंक यू असीम, नेक्स्ट टाइम आई विल यूज़ द बैक कैमरा, ठीक है। पर वो फिर ना बैक कैमरा में कॉमेंट्स नहीं पढ़े जाते, तो चलिए नेक्स्ट टाइम ऐसा कर लेंगे। ओके, तो क्योंकि मूड इतना अच्छा है ना, तो इट्स नो प्रॉब्लम, घड़ी टूट गई, नो प्रॉब्लम। अब आप ये सोचिए, ओके, आप घर पे बैठे हैं और आपको बताया गया कि आपके जो कोवर्कर्स हैं ना, आपके पीछे ये सब बातें कर रहे हैं, और बॉस को ना आपकी कंप्लेंट डाली है, और आपका जो प्रोजेक्ट था ना उसमें 6 खामियां निकाली हैं, अभी देखो कल आएगा फ़ोन, देखना। इतने में आपकी मम्मी जी आती हैं या वाइफ आती हैं और बोलती है वो घड़ी टूट गई। यूल से ये सब पनवती है, यू नो, ये बुरा ही वक्त चल रहा है, यू नो, ये इसी का मतलब ये है कि बुरा वक्त आ गया है, घड़ी भी टूट गई। यू सी हाउ एक ही वही चीज़, घड़ी टूटी, बट 2 डिफरेंट रिएक्शंस बिकॉज 2 डिफरेंट फीलिंग्स। ओके, तो मुझे अपनी इमोशन को ख्याल में रखना है। आई हैव टू इंश्योर दैट आई एम इमोशनली स्ट्रांग। तो वो कैसे बनते हैं? ओके, and this is my last tip of the day, how do you build emotional strength? क्योंकि ये जो समय है ना, यहाँ जो एक इमोशनली ऑब्जेक्टिव, जो इमोशनली स्ट्रांग लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। बेशक अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, वो संभाल लेंगे। इट्स वेरी सिंपल, इनपुट इक्वल्स आउटपुट। जो अंदर जाएगा माइंड में, वो एक्शंस और फीलिंग्स के थ्रू बाहर आएगा। इनपुट इक्वल्स आउटपुट। अभी अगर आप पूरा दिन
इनपुट ही आपका नेगेटिव है। व्हाट्सएप पे नेगेटिव, न्यूज़ पे नेगेटिव, फ्रेंड से बात करे वो नेगेटिव, हर चीज़ नेगेटिव नेगेटिव, कुछ हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एंड सो ऑन। हाउ विल यू फील? यू विल फील कंफ्यूज्ड, यू विल फील लॉस्ट, यू वोंट नो वेयर टू बिगिन, यू विल स्टार्ट डाउटिंग। यू अंडरस्टैंड? इतना अगर नेगेटिविटी आप सुन लेंगे, और मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये मत सोचिए कि आप, कई लोग ना वो फ़ोन ही नहीं रख पाते, इतना उनका चप्पड़ 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 चल रहा है। ओके, इट्स वेरी सिंपल। इफ़ यू मतलब आप कोई बात ना अनसुनी नहीं कर सकते, करेक्ट? हमारे लाइफ में सबसे बड़े ग्रजेस क्या है? अरे लोगों को तो आज तक याद है सन 1957 में क्या बोला था, एंड विमेन विल नेवर फॉरगेट। हम तो ईयर, टाइम, प्लेस वी विल कोट, तुमने उस समय उस वक्त वो बोला था, करेक्ट? हम अनसुनी नहीं कर सकते हैं बातें, हम अनदेखी नहीं कर सकते हैं बातें, करेक्ट? तो वो जो गांधी जी के बंदर है ना, सी नो इविल, हियर नो इविल, स्पीक नो इविल। वाई? बिकॉज यू कांट अनडू इट। अगर आपने इतना बुरा एक एक्सीडेंट देख लिया ना, आप वो लाइफ भर नहीं मिटा सकते उस मेमोरी को। डिड यू नो सोल्जर्स ऑफ वॉर, दे लिव टेरेबल लाइव्स बिकॉज दे कांट अनसी, दे कांट अनहियर, दे कांट अनफील। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। आप क्या देखते हैं, आप क्या सुनते हैं, आप क्या बोलते हैं, बिकॉज दे विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट without your permission, without your control on your emotions. And इमोशंस में डिसीजंस बनते हैं। वो सब तबाह हो गया, अब ये छोड़ दो, गेट इट? एंड दोज आर रॉन्ग डिसीजंस। तो मत जाओ उस ओर जहाँ नेगेटिविटी चल रही है, कट इट। आई हैव लेफ्ट ऑल ग्रुप्स। देखो वो आपने, अगर आप किसी ग्रुप्स में जुड़े हुए हैं ना, फिनिश्ड, योर लाइफ इज फिनिश्ड। ऐसा नहीं है कि आप म्यूट रख दें तो काफ़ी है। आई तो से थैंक यू वेरी मच। मैं नहीं, आई कैन नॉट ज्वाइन एनी ग्रुप। आई एम नॉट इवन अ मेंबर ऑफ माई सोसाइटी ग्रुप, आई एम नॉट इवन अ मेंबर ऑफ माई फैमिली ग्रुप। अगर कुछ अच्छा होगा मुझे बता देंगे, और बुरा तो सुनना नहीं, राइट? या और अगर कुछ अच्छी न्यूज़ होगी पता पड़ जाए कि बुरी मुझे नहीं सुननी है, या कुछ मुझे बताओ विच आई कैन डू समथिंग अबाउट इट। ओके, मुझे जब कोई बुरी न्यूज़ बताते हैं ना, मैं पूछती हूँ, सो आपकी मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन है, मैं क्या करूँ? नहीं ऐसे ही बात बताई। क्यों बताई ऐसे ही बात? मैं क्या करूं इस बारे में? और टेल मी प्रिया, द रीजन आई एम टेलिंग यू दिस इज कि आप ऐसे कर सकती हैं या वैसे कर सकती हैं। गॉट इट? सो प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट इनपुट यू आर पुटिंग इन। इनपुट ही डालना है ना, तो स्किल्स में डालो, रिसोर्सेज में डालो, पुट इट ऑन गुड नॉलेज सो दैट यू ग्रो एज अ ह्यूमन बींग, एंड बिकॉज यू आर लाइक दैट यू आर एबल टू हेल्प so many other people. तो ये मैंने छोटा सा एक आपके लिए विदाउट मुझे ऐसा लगा, अभी देखिए बुलाया मुझे तो इट शुडंट साउंड वेरी प्रीची, बट आई होप इट हेल्प्ड यू, क्योंकि ये टाइम ना मेरे लिए भी बहुत टफ रहा है। एंड बिकॉज आई ट्रैवल, मैं महीने में 15 से 20 दिन तो आई वुड ट्रैवल। तो दिस लॉकडाउन वॉज वेरी टफ फॉर मी, बट टू स्टिल, और अभी रहेगा, अभी तो 31 अगस्त तक बोला है। डू यू नो द मल्टीनेशनल कंपनीज दैट आई वर्क विद, उनको डायरेक्टिव आया है 5 जुलाई टिल 2021 इट विल बी वर्क फ्रॉम होम। तो मतलब कि अब this is going to be your way of life. I have to be graceful. I have to expand my circle of control. I have to increase my talents and knowledge. I have to protect myself. I have to keep a great emotional state अगर मुझे successful होना है. So to I don't know if you heard this, but I will just summarize everything. तो पहले तो again I would like to thank संगीत कला मंदिर and especially अंकिता मैम for calling me. आप लोग सब आए यहाँ पे. I feel it's a big compliment to you that you still have the attitude to learn. और जैसे मैंने कहा, artists are learners for life. That's what makes them so special. Yes. So the first thing is very quickly adapt to change. ओके, डोंट कंप्लेन. वो नहीं रुकेगी बारिश, उसका मन करेगा वो पड़ेगी. आप अपना एक अम्ब्रेला खरीद ही लो, और अम्ब्रेला खरीद लेंगे ना तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर रेन्स फॉर लाइफ. एटलीस्ट यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. देन इंक्रीज योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस एंड इंक्रीज योर सर्कल ऑफ कंट्रोल. अगर एक मुसीबत आ गई है, उसको हैंडल करने के लिए आपको बड़ा बनना पड़ेगा. वो एक नहीं है. एग्जाम्पल आई गेव वॉज वेट लॉस. वेट लॉस नहीं है, उसके लिए आपको 10 और चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी. देन इंक्रीज योर टूल किट ऑफ लाइफ स्किल्स, क्योंकि लाइफ तो जीनी है ना, थोड़ा एटीट्यूड से जीनी है, थोड़ी खुशी से जीनी है, थोड़ी पीस ऑफ माइंड से जीनी है.
उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा. यू हैव टू कैरी दैट एक्स्ट्रा वाटर बॉटल एंड एक्स्ट्रा थिंग्स. और जो प्रिपेयर्ड होते हैं ना, उन्हीं के पास मुसीबत नहीं आती. आपने ये भी देखा होगा, जब आप बहुत प्रिपेयर्ड होते हैं ना एग्जाम के लिए, ऑल स्टूडेंट्स विल वाउच फॉर इट, तभी सबसे इजी पेपर आता है. एक्चुअली आई टेल यू, वो पेपर इसलिए इजी है बिकॉज यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इट. और पूछो जिसने प्रेपरेशन नहीं किया, बोलेंगे कितना हार्ड था. राइट, लाइफ इज लाइक दैट, इट बिकम्स ईजी. देन रीड सेल्फ हेल्प बुक्स. और जैसे मैंने कहा, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने से पहले अपनी प्रॉब्लम लिखो और फिर उसका जवाब ढूंढो. ओके, देन द 24 कैरेट गोल्ड टेस्ट, कि आप मिलावट नहीं है. डोंट डाउट योर सेल्फ. बुरे वक्त में पूरी मिलावटों की पूरी पहचान हो जाएगी. देन harness technology. That technology is the way of the future. आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं, आप एग्जीक्यूटिव हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, दिस इज द टाइम टू यूज टेक्नोलॉजी टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. आप अपना नाम भेजिए मुझे एंड आई विल सेंड यू अ पैराग्राफ अबाउट यू एंड यू डू द सेम अबाउट मी. करेक्ट, आपने ऑलरेडी किया है, ये ना, कुछ तो बात होगी इसलिए आप आए हैं ये लाइव देखने के लिए. नहीं तो अगर मेरा नहीं होता अच्छा डिजिटल फुटप्रिंट, उससे छोड़ो. Okay, and lastly, your emotional state is your responsibility. तो cut negativity, cut sources of negativity, because it's a choice. आपकी choice है ना, आपका phone है, आपने ग्रुप में यू कैन प्रेस अ बटन एंड लीव, यू कैन से नो, क्लिक एंड डिस्कनेक्ट, यू कैन रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्टिंग एप्स एंड यू कैन बाय अमेजिंग बुक्स, यू कैन वॉच अमेजिंग शोज. इट्स इन योर हैंड्स. क्योंकि जो आप अंदर अपने माइंड में डालेंगे वो आपकी डेस्टिनी में अनफोल्ड होगा. सो आई होप दिस हेल्प्ड. मैंने आपका 5 मिनट और टाइम ले लिया है. एंड लाइक आई सेड, थैंक यू अंकिता मैम एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू ऑल कि आप जुड़े रहे. एंड एज प्रॉमिस्ड, I will write a list of books, I will write a list of movies and positivity that you should watch. Gitanjali Joshi, hello. Rishi, hello. So thank you very, very much. Babu, Rupa, Poonam, Ankita, there you are. And Asim, thank you for the tip. I will try to use that for the next live. Indra Kumar, thank you. And Shankar, thank you. Purushottam, Poonam, and Alka, Naveen, Rishi, Kashyap, Umesh, Babu, thank you all. Sanjay, thank you very, very much. So I shall take your leave now. Have a good evening and have a great future ahead. Bye.